Hello everyone, myself Rishabh Gupta. I am from Satna Madhya Pradesh and I have done my graduation from SGS ITC Indore. I am teaching physics subject mainly for JEE Main and NEET division. I had also given a home tuition to few students. Today I would like to teach topic work, power and energy, in which we will start from meaning of work, work done by constant force, types of work and how we can calculate work done by variable force. By the end of this session you will be able to learn this thing. Okay, so let's start. So what is work? Work is any mental or physical activity which can be done by us. Okay, in common language we can say this, but in physics its meaning is different. Okay, in common language you can walking, you are running, you are eating or you are cycling, or any work done by machinery item. Suppose a fan is rotating. Okay, this is also work. Okay, but according to physics, if you are applying force on any object, then that object should come under the motion. अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन पे आता है तभी आपके द्वारा वर्क हुआ. ओके, ठीक है. Suppose there is a heavy stone and a person is trying to push it, right? But he is not able to push that. He is applying constant force on this stone, but stone is not able to move. The displacement of stone is 0. So work done by this man is 0. Okay. Let's write formula of the work. W is equal to F dot S vector. F is a force applying on a body and S is the displacement of body. Okay, ठीक है. We can also further write this as Fs cos of theta, magnitude of force, magnitude of displacement, right? Okay, suppose this force is acting at angle theta and this block has covered distance s. ठीक है. Then the work done by this force is Fs cos theta. Okay, why we cannot write F sin theta, right? This force have two components, F cos theta and another one is F sin theta. Okay, from the figure we can see that block is horizontally moved. Okay, block केवल horizontal direction पे move कर रहा है. So there is only one force F cos theta multiplied by this displacement which is responsible for work done. There is no role of this force. Okay, because block is not shifting upward direction. Block is shifting only on horizontal direction. Okay, got it? Let's discuss its unit. So इसकी SI यूनिट है जूल and 1 joule is equal to unit of force is Newton, unit of displacement is meter. 1 joule is equal to 1 Newton meter. Okay, note down this. Okay, so next moving towards the types of work. Types of work. So from this formula W is equal to Fs cos theta, we can see that value of W is depend on the cos theta. Okay, sign of work is depend on the cos theta, right? Cos theta is positive in the quadrant, first quadrant, when theta is greater than 0 and less than 90. ओके, इस केस में जो वर्क होगा वो आपका पॉजिटिव वर्क होगा. ठीक है, ए एंड बी निगेटिव वर्क. निगेटिव वर्क के केस में जो थीटा की वैल्यू होगी 90 से ज़्यादा होगी
ओके, एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सी इज जीरो वर्क। जीरो वर्क केस में जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। दिस इज a theta, okay. Let's take example for positive and negative work. Suppose we are throwing a stone or a ball from ground, ठीक है। ये कुछ ऐसे जाएगा और फिर वापस आएगा इसी पाथ, ठीक है। जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हो ऊपर, तो ये बॉल पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो जब आप थ्रो करते हो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो रहा है ना। डिस्प्ले ड्यूरिंग दिस टाइम अपवर्ड डायरेक्शन मोशन पे आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट का ऊपर की ओर डायरेक्शन है। जब बॉल नीचे आती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर, ठीक है। अब अपन इस पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। सपोज आपकी ये हाइट h है, ठीक है। कितनी हाइट ये ट्रेवल किया बॉल, h हाइट। तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हमेशा किधर लग रहा है, नीचे की ओर, दैट इज mg, जो कि mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में mg नीचे लगा, जब बॉल ऊपर जा रही है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर हो रहा है, राइट। तो क्या अपन बोल सकते हैं क्या कि mg ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन mg h cos ऑफ 180 डिग्री, गेटिंग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर बट mg का फोर्स नीचे। तो इन दोनों के बीच का जो थीटा एंगल वो कितना होगा, 180 डिग्री। इस केस में अगर देखें तो ये वर्क हुआ अपवर्ड मोशन का, किसका, अपवर्ड मोशन। अगर वर्क डन डाउनवर्ड मोशन में कैलकुलेट कर, ये वर्क डन अपन किसका कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का है ना। तो ये आपका माइनस mgh आएगा और इस केस में आपका mgh cos ऑफ 0 डिग्री। जीरो क्यों, क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस भी नीचे ही कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा mgh। क्लियर, ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्क के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। Let's take one more example. Suppose एक स्टोन को आपने टाइटली बाउंड कर दिया है थ्रेड के एक एंड से और इसको आप ऐसे वर्टिकली रोटेट कर रहे हो, है ना। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। तो इसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियली होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा इस पे, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का इधर, ये दोनों 90 डिग्री में। इस केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये आपका जीरो वर्क का एग्जांपल हो गया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क। सपोज एक सूटकेस है ना, या फिर कोई ट्रॉली है और इसको आप ऐसे पुल कर रहे हो, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी इसके अलोंग ये हॉरिजेंटली है ना, हॉरिजेंटली ऐसे खींच रहे हो आप, है ना, जा रही है। तो इस केस में जो ग्रेविटी का वर्क होगा वो जीरो, क्योंकि इसका मास होगा कुछ m और इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, लेकिन ब्लॉक हॉरिजेंटली डिस्प्लेस कर रहा है ना, ऐसे 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 जाएगा, है ना। तो इन दोनों के बीच भी क्या है, mg इंटू, मान लो इसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, mgs cos ऑफ 90 डिग्री। तो इस केस में भी वर्क डन ग्रेविटी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये भी जीरो वर्क का एग्जांपल है ना। लेकिन इस फोर्स का अगर आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जो कि आएगी w इज इक्वल टू f cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आएगी, है ना। जो आपके द्वारा काम हुआ पॉजिटिव है, लेकिन जो इसके द्वारा काम हुआ वो जीरो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फोर्स है जिनका वर्क डन अपन कैलकुलेट करना सीख गए हैं और इसकी टाइप्स भी अपन देख लिए हैं। अब अपन आगे मूव करते हैं वेरिएबल फोर्स की ओर, है ना। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है, F इज इक्वल टू 4i कैप 4j कैप एंड 4k कैप, और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से बॉडी का जो इनिशियल पोजीशन है 1,1,1 है और इसका फाइनल पोजीशन जो है 4,4,4 है ना।
तो आप इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क के लिए क्या लिखोगे आप, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, है ना। तो एफ वेक्टर आपको दिया है, एस वेक्टर आप निकाल सकते हो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन लेंगे। तो इसका एस वेक्टर निकालोगे 4 - 1 3i कैप, 4 - 1 3j कैप प्लस 3k कैप। इसका आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके, ठीक है। ये आएगा आपका 12 प्लस 12, ये आएगा आपका 36 जूल, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूँ इस बार मैंने आपको फोर्स वेरी कर दिया, फोर्स वेरिएबल दे दिया है ना, मैंने इस बार फोर्स आपको वेरिएबल दे दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट आई के कंपोनेंट के लॉन्ग होगा, जे के बाई एक्सिस और जेड एक्सिस का के कंपोनेंट। मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 5x 3y एंड आपको दे दिया 5। तो इस केस में आपको फोर्स कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। अभी कितना लगेगा एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का, अगर 1 पे है तो 5 न्यूटन, अगर 4 पे तो 4 न्यूटन। तो आप इसमें डायरेक्टली एफ डॉट एस वेक्टर नहीं लगा सकते हो, है ना, याद रखिएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फटाफट से देख लेते हैं। इसके लिए आप करते हैं एफ डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। एफ डॉट डी एस के लिए क्या लिखोगे आप, डी एस वेक्टर को लिख दोगे आप, डी एस वेक्टर आपका होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये आपका डी एस वेक्टर होगा, ओके, ठीक है। और एफ वेक्टर आपको दिया है तो आप ऐसे निकालोगे, W इज इक्वल टू 5x dx प्लस 3y dy प्लस 5 इंटू डी जेड, और इनकी लिमिट पुट कर दोगे आप, है ना। ये आपका dw आया, और इसको कंप्लीट वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, dw का इंटीग्रेशन करोगे और इनमें फर्दर आप लिमिट पुट कर दोगे। 5x dx 1 to 4 प्लस 3y dy 1 to 4 प्लस 5 डिजिट 1 to 4। इस तरह से आप इसका वेरिएबल फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट कर सकते हो ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 5x स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इसका 3y स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इसका 5z आएगा। इस सब में इनकी लिमिट पुट कर दो 1 to 4, इसकी 1 to 4, इसकी भी 1 to 4। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अपन को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं अपन, ठीक। ओके, सो आज अपन ने क्या क्या देखा, वर्क क्या होता है ना। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब अपना फोर्स कैसा है कांस्टेंट, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ना। वर्क का कॉमन लैंग्वेज और फिजिक्स में डिफरेंट क्या वो देखा आपने। फिर देखा आपने टाइप्स ऑफ वर्क। तो वर्क पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, और जीरो कब होता है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 से और 90 के बीच होगी। इस केस में थीटा 90 होगा आपका, और इस केस में थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी और 180 से कम होगी या बराबर होगी, है ना। तो ये चीज़ आपने देखी है ना, ध्यान से इसको नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपने देखा वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन होता है Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz, और इन सब की लिमिट पुट कर दो आप x1 से x2, जहां बॉडी डिस्प्लेस की y1 से y2 और z1 से z2। क्लियर, ये अपन ने देखा 1 2 3 चीजें, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। थैंक यू।